اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق گرامر میں جو ہے انشاءاللہ یفعلو یجعلو یفتحو کے جو ہے ٹیبل اور نکات تعلیم دیکھیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 841 بار آئے ہیں۔ تو کہیے، کیا کہیے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان الحمدللہ، الحمدللہ۔ آج کے سبق کے اختتام تک ہم 144 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 31,638 بار آئے ہیں۔ پھر کہیے الحمدللہ۔ تو آج جو ہم نے سورت پڑھنی ہے اس کا نام فلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورت الفلق اور سورت ناس کو معوذتین یعنی پناہ مانگنے والی دو صورتیں کہا جاتا ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی کہ ہر نماز کے بعد سورت الاخلاص اور معوذتین کو آپ ایک بار، اور فجر اور مغرب کے بعد جو ہے 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو کیا ہوتا، تو اپنے ہاتھوں میں معوذتین پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ ہر قسم کے شر اور جو ہے حسد سے اور جادو سے بچنے کی یہ بہترین صورت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا ہے؟ ہم اہتمام سے ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے، حکم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں، کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ اعوذ۔ اعوذ کے کیا معنی ہے؟ یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے بھائی۔ اعوذ کے معنی کون بتائے گا؟ پناہ میں آتا ہوں۔ گڈ۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں۔ اگر آپ جو ہے وہ فیمیل ہیں تو تب آپ کہیں گے میں پناہ میں آتا ہوں، میل ہے تو کہیں گے میں پناہ میں آتا ہوں۔ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں۔ کیا؟ بی رب، کل کے معنی کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، باللہ اس کے ٹکڑے کیجئے، ہم نے کیا تھا باللہ اللہ کے، یہاں کیا بی رب آ گیا، بی رب کے بھی اسی طرح دو ٹکڑے ہوں گے۔ کتنے ٹکڑے ہوں گے بی رب کے؟ دو، ایک بی اور دوسرا رب۔ بی کے معنی ساتھ اور کی، اور رب، رب یعنی رب کی۔ الفلق، ہاں جی یہ لفظ ہے نا، اس پہ غور کریں گے۔ کون بتائے گا یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم، اسم ہے۔ الف لام سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اسم ہے، الف لام سے پتہ چل گیا یہ معرفہ خاص پراپر نون ہے۔ اب بتائیے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد، واحد ہے۔ اور اگلا سوال ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ عربی میں مذکر ہے، اردو میں مؤنث ہوتا ہے۔ جیسے صبح جو ہے وہ صبح آئی ہوتی ہے، صبح آیا ہوا نہیں ہوتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا سبق ہمیں ملتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شرور میں، انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں گھرا ہوا ہے، یعنی ہر طرح سے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کو کہ جس نے آج تک حفاظت دی ہے، اسی سے درخواست کریں کہ آج بھی وہ ہماری حفاظت کرے۔ تو کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے حفاظت کے لیے دعا کر رہے ہیں، کیا کہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے، تصور کا پورا استعمال کیجئے۔ صبح کا رب،
किस तरह वो सुबह को लेकर आता है, सूरज, रोशनी का डिजाइन, उसकी सूरज से दूरी, जमीन से फासला, जमीन की खास हिसाब से गिर्दिश और बेशुमार इंतजाम होते हैं, तब जाके सुबह होती है। तो ये सारे कौन कर रहा है? अल्लाह। तो इसलिए हम उसकी पनाह में आते हैं। अल्लाह एक दूसरे को सिखाइए, एक दूसरे को सिखाइए, एक दूसरे के लिए दुआइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन शर्रि मा खलक। मिन यानी से, हमने कहाँ पढ़ा था? मिने शैतान से। मिन, शर, शर कहते हैं शर, फितना, फसाद, तकलीफ। माँ, जो, माँ के तीन मैनी थे, कौन बताएगा भाई? एक तो ये जो है, और क्या मैनी है माँ के आपने अब तक सीखे हैं? नहीं, नहीं, एक और नहीं, ठीक है, ना, नहीं, ना और जो, ये तीन मैनी हो जो, गए। नहीं, नहीं, ना ना, तो एक जो। ही हुआ। क्या, क्या एक मैनी होता है क्या? माँ इस्मो का, तेरा नाम क्या है? माँ इस्मो का, तेरा नाम क्या है? तो ये माँ के मैनी भी होते हैं, नहीं के भी, और जो ये आपने अच्छी तरह याद। खाला का, उसने पैदा किया। खाला का क्या है? फेल है, याद रखें। अब तक हम आपसे पूछते थे ना इसम फेल, तो ये इसे याद रख लीजिए, खाला का क्या है? फेल है। आइए, मिन के मैनी से, शर के मैनी होते हैं शर, अभी हम देखेंगे। का एक टेबल भी पढ़ा था। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन आगे अभी देखिए, इसे हम देखते हैं। मिन शर्रिल खलक, शर के दो मैनी क्या होते हैं? एक होता है तकलीफ और दूसरा बुराई। उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, शरारत, शरीर, इशरार, शर पसंद, शरंगेजी वगैरह, ये इसी शर से निकले हुए अल्फाज हैं। जो के मैनी है माँ के, और भी मैनी है, ये देखिए। अरबी में एक लफ्ज होता है फी के मैनी होता है में। माफी, माफी उसमें नहीं, माफी नहीं, माँ के एक मैनी है नहीं, एक है जो, अभी हमने पढ़ा था, और एक होता है क्या, ये देखिए। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? माँ इस्मो का, तेरा नाम क्या है? तो माँ के तीसरे मैनी क्या है? क्या। तो अब आपको पता चल गया माँ के कितने मैनी हैं। जी बताइए, दोहराइए, कितने मैनी है माँ के? तीन। कौन कौन से हैं? जो, नहीं, जो, क्या? नहीं, क्या जो, और जो। गुड। आइए, एक लफ्ज होता है मन। मन के भी दो मैनी होते हैं, क्या? एक होता है कौन, जैसे मन रब का, आपका रब कौन है? मन रसूलों का, आपका रसूल क्या है? और एक मन मैनी दूल्हे इसके का, होते हैं जो, जैसे हमने सुना पढ़ा था, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी, जो उसने उसकी तारीफ की। तो मन के दो मैनी क्या होते हैं भाई, बताइए? कौन, जो। और जो, और जो, वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं। खाला का, अब आपने मुझे टेबल याद दिला दिया। खाला का, उसने पैदा किया। खालाकू, उन सब ने पैदा किया। खलक का, आपने फलक पैदा का, किया। खलकू, फलक, मैंने पैदा किया। मैंने पैदा किया, खलकू, आप फलक, सबने पैदा किया। खलकना, हम सब ने पैदा किया। खलकत, उस औरत ने पैदा किया। तो ये उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, कैसे? खालिक, मखलूक, खल्के खुदा, ये इसी लफ्ज से निकले हुए अल्फाज हैं। तो खला का क्या मानी है? उसने पैदा किया। पैदा किया। हमारा पढ़ा हुआ लफ्ज है, आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इससे हमें असबाक मिलते हैं, याद रखिए। शर से उन चीजों के जो उसने पैदा किया, यानी मखलूक के शर से। मसलन अल्लाह ने इंसानों को अच्छे कामों के लिए पैदा किया, मगर बाज इंसान शर खिलाते हैं, तो उनके शर से हम पनाह चाहते हैं अल्लाह की। इसी तरह सारे जानदार जान चीजों के शर से, हर चीज का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, तो उनके नुकसान को हम शर से ताबीर करेंगे, और अल्लाह से उन सब के शर से पनाह। तो अल्लिम, इस आयत को आप एक दूसरे को सिखाइए, और कोई आपके नजदीक नहीं है तो अपने बुलंद आवाज से अपने आप को सुनाइए, लेकिन माइक म्यूट रखिएगा। मिन शर्रि मा खलक में सब शामिल है, मगर तीन शरूर का खास जिक्र है। आइए देखते हैं वो क्या क्या है। गासिक, अंधेरा। नफासात, जादूगरनियां। और तीसरा हासिद, यानी हसद। तीनों में एक चीज आम है, वो क्या? इंसान को मालूम नहीं होता कि वो जो है शर के हमले में है। मसलन रात के अंधेरे में उसे नहीं पता होता कि आगे से खतरा आ रहा है, कोई उस पर हमला करने वाला है।
اسی طرح جادو کا نہیں پتا ہوتا کہ آپ پہ جادو ہو رہا ہے، آپ پہ حملہ ہو رہا ہے، آپ جادو کے اثر میں. اسی طرح آپ کو نہیں پتا ہوتا جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ سے دل میں حسد رکھتا ہے، وہ آپ سے بغض رکھتا ہے، آپ کو نہیں پتا. تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اعوذ برب الفلق. ہم اللہ سے جو ہے پناہ مانگتے ہیں اندھیرے کی. پھر آگے اگلی آیت میں نفاسات آئے گا، پھر حسد آئے گا. جیسے آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ ایک شیلڈ کے اندر چھپ جاتے ہیں، آپ کور میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں اور شیطان کے حملوں سے آپ کو بچاتے ہیں. اسی طرح جب ہم یہ سورت پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے ایک حفاظتی بند کے اندر آ جاتے ہیں. ہمارے گرد ایک حفاظتی اشعار ہو جاتا ہے، ایک حفاظت کا پردہ آ جاتا ہے جو ہمیں ان چیزوں سے بچاتا ہے. تو آئیے اگلی آیت کا حصہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور من سے شر کے، غاسقٍ اندھیرے کے، اذا جب، وقب وہ چھا جائے. یہاں پہ دو چیزیں امپورٹنٹ. ایک تو یہ غاسق کا بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی غاسقین اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ فعل. آپ نے فعل کہا، کوئی اور بتائے بھائی. اسم کیسے پتا چلا آپ کو کہ اسم ہے؟ اندھیرا. نہیں اس سے نہیں، کوئی علامت نظر آ رہی ہوگی تو ہم مانیں گے. تنوین آئی ہے اس سے. دو زیر نظر آ رہے. ویری گڈ، جس نے کہا شاباش. دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے اسم ہوتا ہے. اگر الف لام نہ ہو اس کے آخر میں یا تو دو پیش آئیں یا دو زبر آئیں یا دو زیر آئیں تو وہ بھی اسم. تو اس کے نیچے دو زیر آ رہے ہیں تو اس لیے یہ اسم ہے. اس لیے نہیں کہ اس کا مطلب اندھیرا یا صبح ہے، نہیں، اس لیے کہ اس کے نیچے علامت دو زیر آ رہی ہے جس سے پتہ چلا یہ اسم ہے. اب آگے ایک نئی چیز آ گئی. اذا کے معنی تو ہوتا ہے جب، لیکن اگلا وقت کیا ہے؟ وقبہ. وقبہ کے معنی ہے وہ چھا گیا، ماضی کا صیغہ ہے، چھا گیا. لیکن ترجمہ ہم کہتے ہیں چھا جائے، یعنی حال کا ترجمہ کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ اذا جب کسی ماضی کے لفظ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے ترجمے کو حال میں لے آتا ہے. وقبہ چھا جائے، لیکن جب کہیں گے اذا وقب تب کہیں گے جب چھا جائے، یعنی حال میں لے آتا ہے. یہ ایک اہم نقطہ تھا اس میں. وا اور من سے شر و من شر اور شر سے. غاسق کہتے ہیں اندھیرا. پہلے ہم نے جو ہے وہ لفظ اندھیرے کا استعمال کیا. یہ دو لفظ ہیں از اور اذا، دونوں کے معنی ہوتا ہے جب. از اور اذا دونوں کے معنی جب. اور یہ فرق کیا کرتا ہے؟ اذا کے بعد ماضی آئے تو اس کا معنی مضارع یعنی حال میں چلا جاتا ہے. جیسے دیکھیں وقبہ چھا گیا، لیکن جب ہم نے کہا اذا وقب جب چھا جائے. اسی طرح ایک لفظ ہے جا، وہ آیا، ماضی کا ہے، لیکن جب کہیں گے اذا جا جب آ جائے. تو اصول کیا ہوا؟ اصول یہ پتا چلا جب اذا جب آتا ہے ماضی سے پہلے تو ماضی کے ترجمے کو مضارع میں تبدیل کر دیتا ہے. بس یہ آپ نے یاد رکھنا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اسباق کیا ہیں اس آیت کے. خالی دماغ شیطان کا کارخانہ. روزانہ 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے، رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا ختم ہوتا ہے، انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے. خالی دماغ شیطان کا کارخانہ. اکثر برائیاں رات کو ہوتی ہیں، رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سینما، کلب، بدکاریاں، بہت غلط کام جو ہے وہ رات کو ہوتے ہیں. رات کا حملہ، دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں چل ہوتا کیسے حملہ اور کون کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے؟ پناہ مانگے اپنے رب کی کس سے؟ اندھیرے سے. تو اسے علم ایک دوسرے کو سنائیے. اگر آپ اکیلے ہیں تو بلند آواز میں اپنی جگہ پر دہرائیے، لیکن مائک کو میوٹ رکھیے. اپنے مائک کو بیٹا میوٹ رکھو. اس بیڈ محمد بن عمر آپ یہاں آپ میوٹ کیجئے اپنے آپ کو.
چلیے آگے چلتے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وا معنی اور، مین معنی سے، شر یعنی شر سے، وَمِن شَرِّ اور شر سے، النفاسات پھونکے مارنے والیوں کے. کہاں؟ فی میں، العقد گروہ میں. آئیے اس لفظ کو پہلے دیکھتے ہیں. النفاسات، آپ کے خیال میں یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ اسم. جی اسم ہے. کیوں؟ الف لام آ گیا، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اسم ہوگا. اور الف لام کی وجہ سے پتہ چلا یہ معرفہ خاص اسم ہے. اور پھر اب اگلا سوال آپ سے میں کروں گا، یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع. جمع ہے، کیونکہ آخر میں الف تا نظر آ رہا ہے. یہ کھڑی زبر جو ہوتی ہے یہ الف ہوتا ہے. تو یہ جمع کون سا ہے، مذکر کا ہے مؤنث کا؟ مؤنث کا. کیوں؟ مؤنث کی جمع میں نے پیچھے پڑھا تھا الف تا سے بناتے ہیں. جیسے مسلمات سے مسلمات، مومنات سے مومنات، صالحات سے صالحات، یہ مؤنث کی لام. اگلا لفظ دیکھیے العقد، کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے بھائی؟ اسم. اسم ہے. الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے، الف لام سے پتہ چل گیا پراپر یعنی جو ہے کون سا ہے، معرفہ ہے. اب اگلا سوال ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ واحد ہے. واحد. واحد. چلیں اس کو جمع، تھوڑی سی دیر کے واحد. لیے روک لیتے ہیں، کیونکہ آگے اس کی تشریح آ رہی ہے، اس میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا یہ واحد ہے یا جمع ہے. اور دوسرا یہ بھی پتہ چل جائے گا مذکر ہے یا مؤنث. اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیتے ہیں. جی لولی، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا، کوئی سوال ہے آپ کا؟ سر وہ جو معرفہ ہو تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ الف لام سے. اور اسم؟ الف لام سے. اور حرف؟ حرف کے اوپر الف لام نہیں ہوتا. حرف ابھی حرف کی کوئی پہچان نہیں پڑھائی ہمیں، صرف 9 حرف پڑھائے ہیں. چلیے اب آگے چلتے ہیں. پھر آخر میں آپ کے سوال کیجئے گا، آپ نوٹ کر لیجئے، آخر میں بات کریں گے. اب ہینڈ ڈاؤن کر دیجئے، ہینڈ ڈاؤن کر لیں، سوال اپنا نوٹ کر لیں، آخر میں بات کریں گے، پہلے سبق پورا کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ومن شر، ہم نے پہلے بھی دیکھا، وا معنی اور، مین معنی شر، سوری مین معنی سے، شر معنی شر. اور النفاسات، اسے دیکھیں. نفاسات کیا ہے؟ واحد ہے، جادوگرنی، پھونک مارنے. اور اس کی جمع ہے نفاسات. کیوں؟ یہ مؤنث لفظ ہے گولتا سے، اس لیے الف تا آیا، یہاں پہ یہ جمع آیا. اگلا لفظ دیکھیے عقدہ. عقدہ کیا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث. 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 اور اس کی جمع کیا ہوگا؟ عقدہ. عقدتن سے عقدہ، تو عقدہ کیا ہوا؟ جمع ہوا. کون سا؟ مؤنث کا. اب میں آ جاتا ہوں اوپر آیت میں. العقد، ہاں جی بتائیے، اسم تو پتہ چل گیا الف لام سے، معرفہ بھی. اب اگلا سوال بتائیے، یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ جی مذکر ہے. مذکر ہے. نیچے آپ کو میں نے پڑھایا، اسی دیکھ لو، اسی دیکھ لو. یہ کیا ہے؟ مذکر نہیں ہے، یہ گول تا سے اس کا واحد آ رہا ہے، مؤنث. اس کی جمع آ رہی ہے، یہ مؤنث جمع ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے اس لفظ کو خاص طور سے، کیوں؟ اس میں علامت مؤنث کی نہیں آ رہی، جمع کی نہیں آ رہی، اس لیے ہمیں نہیں. لیکن اب تو آپ کو یہ ہم نے بتا دیا، اس کا واحد ہوتا ہے عقدۃ، اور جمع کیا ہوتا ہے؟ عقد. تو اب پھر میں سوال کرتا ہوں، بتائیے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث. مؤنث ہے. واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. جمع. اب اس کو آپ نے یاد رکھ. اب آپ کو پتہ لیکن چل گیا کہ یہ ایک علیحدہ سے ہٹ کے لفظ آیا ہے، جس میں نہ مؤنث کی علامت نظر آ رہی ہے، نہ جو ہے جمع کی علامت آ رہی ہے. لیکن اب ہمیں چونکہ پتہ چل گیا کہ اس کا واحد عقدۃ ہوتا ہے، جو کہ مؤنث لفظ ہے، لہذا اس کی جمع عقدہ جو ہے کیا ہوگا؟ مؤنث. کلیئر؟ اگر نہیں ہے کلیئر تو میں اور اس پہ وقت لگا. العقد آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جمع مؤنث ہے. کیوں؟ یہ نیچے آپ کو اس کا ابھی ہم نے واحد اور جمع اور دونوں حالتیں بتا دی کہ یہ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے، کیونکہ بولتا اس کا آتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں گرہ. عقدہ کے معنی ہوتے ہیں گرہ. یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. عقد ثانی سنا ہے نا؟ عقد یہ شادی کی گرہ، عقد مبارک ہے، تو یہ اس کو ادھر استعمال ہوتا ہے. عقد جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے، عقد.
फी मैनी में अलुकत गिरहों में गिरा वैसे भी उर्दू में जो है मुअन्नस होती है, गिरा लगा दी, गिरहें लगा दी। तो आइए आगे चलते हैं, इसके असबाक लेते हैं इस आयत के। हर मसले का हल क्या है? हमारे बास खानदानों में एक बड़ा मसला है, यहाँ मत खाओ, वहां मत करो, वो कुछ भी हो जाएगा। उस सब का ये जो है सूरत जो है क्या है, बेहतरीन हल है। सिस्टर मैं ये आयत पूरी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप शुरू कर दीजिएगा। तो एक सख्त आजमाइश, जादू जो है क्या है, एक सख्त आजमाइश है। अच्छे खासे लोगों का अकीदा डगमगाने लगता है और वो उसके इलाज की खातिर जो है गलत काम करने लग जाते हैं। तो हम क्या है, उससे भी पनाह मांगते हैं। क्यों? शैतान का वार हर रात को एक और भी किस्म के फूंक मारने वाले होते हैं, जो रोजाना हम में से हर एक के सर में रात को 3 गांठ बांधते हैं, यानी वो शैतान रहता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम्हें से हर एक की गुद्दी पर यानी सर के आखिरी हिस्से पर जब वो सो जाता है 3 गिरहें लगा देता है और हर गिरे पर वो मंत्र पढ़ता है। क्या पढ़ता है? तेरे लिए रात बहुत लंबी है, खूब सो जाओ, खूब सो। अगर वो बेदार होकर अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो एक गिरा खुल जाती है, फिर अगर वो वजू भी कर ले तो एक और गिरा खुल जाती है, फिर अगर उसने नमाज भी पढ़ ली तो तमाम गिरहें खुल जाती है। और वो सुबह इस हाल में करता है कि वो हशाश बशाश और पाकीज़ा नफ्स होता है, वरना उसकी सुबह इस हाल में होती है कि वो खबीसुन नफ्स और सुस्त होता है, यानी सारा दिन काहिल और सुस्ती में गुजरता है। तो इसको आप एक बार दोहरा लीजिए। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, मैडम आ गई हैं, वो अब ज्वाइन कर। यहाँ से शुरू करना है। तो अब हम जस्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हम इसको शुरू कर लेते हैं। ओके फाइन। सो बिस्मिल्लाह। आयत नंबर 5 इस वक्त हमारे सामने है, सूरतुल फलक। बहुत ही बेहतरीन सूरत। कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर मेंशन हुई हैं जिनके शर से हम हमेशा बचना चाहते हैं, जो सर अभी हमें इतना अच्छा समझा रहे थे। उनमें से जो आखिरी चीज सूरत में मेंशन हुई है वो इस आयत मुबारका में मौजूद है। हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आयत नंबर 5, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और शर से हसद करने वाले के जब वो हसद करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बॉक्सेस में जो मानी नजर आ रहे हैं, मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट जो लफ्ज है वो मिन शर्रि आपको नजर आ रहा है। दरअसल ये 3 अल्फाज है, वा, मिन और शर, ठीक है। और इसी तरह हासद, फिर इज़ा, फिर हसद, और तर्जुमा आप यहाँ देख चुके हैं। आइए इसको बाकायदा समझते हैं। वो मिन शर्रि मतलब शर और शर से। वा का लफ्ज तो हम बारहा पढ़ चुके हैं, वा का मतलब होता है और, मिन का मतलब है से, और शर का मतलब है शर। अभी सर आपको बता रहे थे इसम फेल हर्फ के बारे में भी, तो आप उसको भी समझ चुके हैं। आप जानते हैं कि मिन जो है वो हर्फ है, इसी तरह करता है, ठीक है। अभी हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। इज़ा, जब, इज़ का लफ्ज भी आता है कुरान में, इज़ा का लफ्ज भी आता है, दोनों के मानी होंगे जब, ठीक है। तर्जुमा तो हमने पढ़ लिया, अब हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो माय डियर क्लास फेलोज, ठीक है, हम सब मिलकर सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अक्सर ये लफ्ज सुनते हैं अपने आसपास, तो शायद हम इस्तेमाल भी करते हैं कि कोई किसी से हसद कर रहा है, ठीक है, या एक हमारी लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं वो जल रहा है उससे, है ना, या फिर हम कहते हैं जेलस होता है। इस किस्म के बहुत सारे अल्फाज। तो हसद जो है ना, ये दरअसल अरबी का लफ्ज, ठीक है। और हासिद उसको कहते हैं जो हसद कर रहा हो, ठीक है। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स में समटाइम्स हो सकता है कोई हसद ना कर रहा हो और कोई ना कोई हम में से अल्लाह ना करे कि नेगेटिविटी की वजह से समझ रहा हो कि वो मुझसे हसद कर रहा है। तो यहाँ ये जो स्लाइड है ना, आप इसको गौर से देख लें और समझ लें कि हसद और रिश्क दो चीजें हैं, उनका मानी क्लियर होना हमें बहुत जरूरी है। हसद उसको कहते हैं अगर कोई शख्स ये चाहता है ना कि अगर आपको कोई अच्छी चीज मिली है और वो आपको क्यों मिली है उसको अच्छा नहीं लग रहा, और वो चाहता है कि आपसे वो छिन जाए, किसी तरह आपके पास से वो अच्छी चीज कहीं चली जाए, नुकसान हो जाए, और वो शख्स चाहता है कि उसे मिल जाए, या उसको मिले ना मिले आपका नुकसान हो जाए, आपके पास वो चीज ना रहे,
फिर उसको हम कहते हैं हसद, जो डेफिनेटली नेगेटिव चीज है। किसी के बारे में भी बुरा सोचना जो है वो अच्छी बात नहीं है, हम सब जानते हैं। बुरा करना तो उससे भी बड़ी बुरी बात है, ठीक है। लेकिन रश्क क्या होता है? रश्क होता है कि कोई शख्स ये चाहता है कि अगर आपको कोई अच्छी चीज मिली है, अल्लाह ताला ने नवाजा है किसी अच्छी चीज से, तो रश्क करना मतलब ये होता है कि दूसरा शख्स देखकर खुश भी हो रहा होता है कि देखिए माशाल्लाह आपको अच्छी चीज मिल गई, और वो कहता है उसको भी वो अच्छी चीज मिल जाए। तो ये तो बुरी बात नहीं है, किसी की अच्छी चीज देखकर उस अच्छी चीज की तमन्ना करना, उसके लिए एफर्ट्स करना पॉजिटिविटी के साथ, वो तो बुरी चीज नहीं है, वो रश्क होता है। अच्छा, होता पता है क्या है, मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है बहुत सी जगहों पर कि अक्सर कोई हसद नहीं भी कर रहा होता ना, तो नेगेटिविटी में कुछ लोग ये शायद समझने लगते हैं कि नहीं ये तो देखो मुझसे जेलस हो रहा है, मुझसे जल रहा है, मुझसे हसद कर रहा है। तो हमें अपनी जगह पॉजिटिव रहना चाहिए, पूरी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है अगला पर्सन जो आपकी किसी चीज की बार बार तारीफ कर रहा है, बार बार जिक्र कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो जल रहा है, हसद कर रहा है, वो रश्क कर रहा है, और रश्क करना अच्छी बात है, ठीक है। तो हसद जो है वो हराम है और रश्क करना जायज है, ठीक है। ओके जी, तो हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया इसको। और क्या लिखा है फिर, इज़ा हसद, यानी हसद करने वाले के शर से हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि हसद करने वाले की शर से हमें बचा जब वो हसद करे, ठीक है। इज़ा का मतलब जब है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जरूरी नहीं है कि कोई हसद करने वाला किसी ऐसे शख्स से हसद करे जिसके पास, जो बहुत ही कोई दौलतमंद शख्स है, या उसके पास कोई बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, या कोई बहुत बड़ा घर है, ये जरूरी नहीं है। हसद एक सोच है, ठीक है। एक तरह की इंटेंशन है, नीयत है, तो ये भी कह सकते हैं। वो किसी छोटी चीज पर भी हो सकती है, ठीक है। कोई जो है सफाई करने वाला, फॉर एग्जाम्पल भाई कोई एक सफाई कर रहा है, दूसरा शख्स सफाई कर रहा है, जो क्लीन कर रहे होते हैं, और वो जो वाइपर लगा रहा है, एक के पास नया है तो दूसरा शख्स उससे हसद कर सकता है। अगर वो नेगेटिव सोच रखता है तो वो ये सोचेगा इसके पास नया वाइपर क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास पुराना है। और वो ये कोशिश करे कि ये किसी तरह टूट जाए, गुम हो जाए, या उसके लिए तमन्ना करे या कोशिश करे, तो फिर वो हसद होगा। तो इस तरह ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, हसद डेफिनेटली अच्छी चीज नहीं है ना, है ना। और एक बात आपने यहाँ जरूर ध्यान में रखनी है, ये तो हम जरूर सोचते हैं कि कोई हमसे हसद ना करे, हमें ये भी सोचना है कि हम कहीं हसद ना कर रहे हो किसी से, ये तो और भी ज्यादा नुकसानदेह है हमारे लिए, है ना। क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक तो वो इंसान अच्छा नहीं है ना, राइट। तो हमें दुआ करनी है कि कोई हमसे भी हसद ना करे, और हम भी ऐसे ना हो जाएं, हमारे अंदर ऐसी फीलिंग डेवलप ना हो कि हम किसी से हसद करने लग जाएं, ठीक है। तो इस बात को आपने खास तौर पर ध्यान में रखना है। और यहाँ पर इतनी बड़ी बात है, हमारे काम की बात है कि इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि इन मुबारक अल्फाज के साथ तुम दुआ करो, मुझसे मदद तलब करो, इंशाल्लाह मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारी हिफाजत फरमाऊंगा, ठीक है। तो हमें इस चीज का हल दे दिया अल्लाह ताला ने, जिसके बारे में हम अक्सर सोचते हैं उसने हसद किया तो मेरा ये नुकसान हो गया। अब देखिए सूरतुल फलक की वैल्यू कितनी ज्यादा है कि 3 इवल्स की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। पहली चीज है गासिक, सूरतुल फलक में अंधेरा, यानी हम सब जानते हैं कि रोशनी गुड है, अच्छी है, अंधेरा अच्छा नहीं है। गासिक यानी अंधेरे का कोई भी नुकसान है, जो भी आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उससे हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं या अल्लाह हमें महफूज है, ठीक है। फिर किसी भी तरह का जादू, ये भी जिक्र अक्सर सुनते हैं हम, है ना। जरूरी नहीं होता कि हुआ हो, लेकिन कुछ लोग गलतफहमी में भी चले जाते हैं कि शायद हम पर कोई जादू हो रहा है, और हो भी सकता है कहीं वो भी रहा हो, राइट। एनी केस अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि इस कंडीशन में भी आप हिफाजत के लिए सूरत को पढ़ें, है ना। और तीसरी चीज क्या है, हसद है। तो इन तीनों में हमें क्लियर नहीं होता ना, क्योंकि अंधेरा है ना। इसी तरह जादू के बारे में हमारे पास जब तक कोई बहुत बड़ा क्लू ना हो, कोई आके बता ना दे या कुछ भी, हम ऐसे ही समटाइम गलत फहमी में रहते हैं, तो हमें कंफर्म नहीं होता, मालूम नहीं होता कि कोई हम पे जादू कर रहा है या नहीं, है ना, या हम पे असर हो रहा है या नहीं हो रहा, मे भी हम गलत फहमी में हो। इसी तरह हसद के बारे में, जैसे मैं आपको हसद और रश के बारे में बता रही थी, हसद के बारे में भी हमें कंफर्म नहीं होता कि अगले बंदे को जिसे हम समझ रहे हैं हमसे हसद कर रहा है, क्या सचमुच वो हसद कर भी रहा है, या हो सकता है उसके दिल में ऐसी कोई फीलिंग ही ना हो, हम समझ रहे हो। यानी ये तीनों चीजें जो है ना, हमें श्योर नहीं होती। ये बात कॉमन है इन तीनों में, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इतना फायदा जहां हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी तारीफें हम अपने रब की करें वो कम है। तो देखिए
क्यों नहीं हम इस सूरत को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे? हमारी लाइफ के लिए हमारा ही तो फायदा है इससे, है ना? तो देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था, उससे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? उन्होंने ही हमें, उनके जरिए से अल्लाह की सूरत हम तक पहुंची। और आप क्या करते थे? आप हर फर्ज नमाज के बाद तीनों कुल जो हैं वो तिलावत करते थे, ठीक है? और सूरतुल फलक, सूरतुल नास, सूरतुल इखलास, ठीक है? और फजर और मगरिब की नमाज के बाद 3-3 बार पढ़ते, ठीक है? तो इस इस वक्त में प्रॉपर वो इन खूबसूरत अल्फाज के साथ दुआ मांगते थे। तो हमें डेफिनेटली अभी पता चल गया, तो अभी के बाद हमारी जो भी नमाजें हैं, हमें इंशाल्लाह उसका, उन नमाजों का हिस्सा बनाना है इस सूरत को, और समझकर एहसास के साथ कि हम अल्लाह से मांग क्या रहे हैं, क्या चीज बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं अल्लाह की, अल्लाह से मांग रहे हैं, क्या जिक्र कर रहे हैं, ठीक है? ये ज़हन में रखकर मांगे तो फिर तो डेफिनेटली वो फीलिंग के साथ मांगेंगे तो मिलेगा इंशाल्लाह, है ना? और अजर भी मिलेगा, सुन्नत पे अमल करने का अजर भी मिलेगा। तो देखें, हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, सर में दर्द हो या कुछ भी, तो अल्लाह ताला ने की मदद से, देखें डॉक्टर्स बनते हैं कितने लोग, तो हम उसके पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास, है ना? अब देखें अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, तो बेसिकली तो सब चीजें अल्लाह के हाथ में है। तो हर चीज का, किसी भी मसले का हल जो हमें अल्लाह ताला बता सकते हैं, उससे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने सबको बनाया, है ना? तो इससे बेहतरीन हल हमें नहीं मिल सकता अंधेरे से किसके की मौजूदगी में किसी नुकसान से बचने का, किसी भी जादू के असर से बचने का, या किसी के हसद से बचने का, कि हम सूरतुल फलक की तिलावत करें एन उसी तरह जैसे हमारे नबी ने फरमाया, पूरे दिल से विर्द करें, पूरे दिल से दुआ करें। इससे बड़ा अगर कोई बताता है कि इन तीनों चीजों का कोई हल है, तो वो इससे बढ़कर नहीं हो सकता, वो गलत बात है, ठीक है? तो ये बात, हमारा ये ईमान होना चाहिए, और यही है इंशाल्लाह, ठीक है? और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे या किसी और रास्ते पर जाएंगे जो कि गलत रास्ता है इन चीजों को दूर करने के लिए, तो वो फिर उसमें नुकसान हमारा ही है, किसी और का नहीं, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस आयत मुबारका को समझ लिया। अब पूरी दिल से दुआ करते हैं कि या अल्लाह वाकईतन अगर कोई हमसे हसद कर रहा है तो उसको हिदायत अता फरमा, उसके दिल को पॉजिटिव कर हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि हसद करने से आपकी अपनी नेकियां भी तो चली जाती है ना? और ए अल्लाह अगर हमारे दिल में कोई ऐसी फीलिंग किसी के बारे में, तो हमें हसद जैसी बुराई से, इस बीमारी से बचा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं और इवेलुएट करें, हमने कभी किसी से हसद तो नहीं किया, अब नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, दूसरों की खुशी में खुश होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्जी से उनको मिलती हैं सब चीजें, तो हम तो अल्लाह की रजा में राजी हैं, ठीक है? और फिर फ्यूचर के लिए अच्छा प्लान बनाकर हमने दूसरों को इस बारे में बताना है। आप बहुत लोगों से सुनते हैं अंधेरा, जादू और हसद के बारे में, सबको बताएं कि इतना अच्छा हल कुरान में मौजूद है, आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा हल ढूंढने के लिए, है ना? सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें हर तरह के शर से बचाए, हर तरह के शर से, ठीक है? और इंशाल्लाह हम अपनी लाइफ में लेकर आएंगे अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, और सहाबा कराम जिस तरह उनसे सीखते थे, है ना? हम भी सीखेंगे जिस तरीके से हमें ऑथेंटिकेशन से बातें पता चल रही हैं, ठीक है? और अपनी नमाज में लेकर आए और फिर दूसरों को बताएं, इसके लिए हमें कोशिश करनी है। सिर्फ ये नहीं कि बस अपने लिए कर लिया और दूसरों का नहीं सोचना, ऐसे नहीं, तबलीग जरूरी है। आप देखिए यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा है दरमियान में, आप देखें जरा स्लाइड पे, बर्बादी के लिए, यानी डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाह होने के लिए सिर्फ यही काफी है कि जो अच्छे लोग हैं वो कुछ ना करें। अब आप मुझे बताएं, आप जितने लोग क्लास में हैं, आप सब कहेंगे ना कि हम तो अच्छे लोग हैं, है ना? अगर अच्छे लोग एफर्ट नहीं करेंगे, अगर अच्छे लोग एफर्ट नहीं करेंगे, तो फिर सोसाइटी में अच्छा चेंज कैसे आएगा? अगर हम सिर्फ यही कहेंगे हाँ हम तो बहुत अच्छे हैं, दूसरे अच्छे नहीं है ना? तो दूसरों को अच्छा कौन करेगा? हम करेंगे ना। अगर हम मानते हैं कि हम किसी जगह पर अच्छे हैं, हम किसी बात को समझ रहे हैं, हम समझदार हैं, हम दुरुस्त रास्ता जानते हैं, ठीक है? अगर हम दूसरों को नहीं बताएंगे तो इसका मतलब है हमें जवाब देना पड़ेगा कि हम तो अच्छे लोग थे, हमने एफर्ट ही नहीं की, सोसाइटी कैसे चेंज होगी, है ना? तो हमें पूरी कोशिश करनी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें से जो कोई किसी बुराई को देखे तो पहले जुबान से एफर्ट करे उसको रोकने की, अगर वो भी नहीं कर सकता तो कम से कम दिल में बुरा माने। और सिर्फ दिल में किसी बुराई को बुरा मानना, जानना, ये ईमान का सबसे नीचे का लेवल है। क्या हम यही करते हैं सिर्फ? और ये सोचिए अगर हम ये भी नहीं कर रहे, दिल में भी किसी बुरी बात को बुरा नहीं मान रहे, इसका मतलब है कि इसके बाद तो फिर ईमान का लेवल है ही नहीं, सबसे नीचे का लेवल तो ये है। तो ये बड़े पते की बात है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल करने की, जो कुछ हमने माशाल्लाह इस बुक में अब तक सीखा है, आगे सीखेंगे, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तबलीग करने की। तो सारे लोग जो क्लास में हैं वो याद कर लें, सूरतुल फलक का अगर कोई आपसे पूछे समराइज करके बताएं या सूरतुल फलक क्या है,
بتائیں گے قرآن کی صورت ہے. اور یہ صورت ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے, یہ صورت کیا ہے, تمام جو شر ہے نا, ایولز, ان سے بچنے کا فارمولا اللہ نے ہمیں دے دیا, حل دے دیا, ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, خاص طور پر اندھیرا, جادو اور حسد. بس یہ بات اپنے فنگر ٹپس پہ یاد کر لینی ہے. ٹھیک ہے, اوکے, الحمدللہ. تو ہم خوش ہیں اس بات پر کہ ہمیں جو ہے وہ اتنی کام کی بات آج پتہ چلی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, الحمدللہ کہیں. اور الحمدللہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہمارا. اے پارٹ, بی پارٹ کی طرف چلیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ووکیبلری کارڈ سے یاد کر رہے ہوں گے. مجھے بہت لوگوں کا فیڈ بیک آیا ہے کہ اس سے واقعی چیزیں ذہن میں رہتی ہیں, مین ورڈز. اور مڈ کوئز جو اٹیمپٹ کیا ہے بہت لوگوں نے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں بہت اچھے سے چیزیں سمجھ میں آئی ہیں. جی, آپ میں سے کوئی کوشچن کرنا چاہ رہا ہے؟ میم جی میم جی بتائیے, بات کریں. میم میں نے پہلے دو کہا بچے ہے. ایک ساتھ بول رہے ہیں. 1 منٹ رک جائیں آپ لوگ, 1 منٹ رک جائیں ذرا. اپنا مائک آپ ایسا کریں, اپنا مائک بند کریں اور ہینڈ ریز کریں, پھر میں آپ کا مائک آن کرتی ہوں کیونکہ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. جی, مطہرہ بطول, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ٹرن آن یور مائک. جی ڈاکٹرز ہیلپر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹرز کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے. بالکل, ماشاءاللہ. اور مدد کرنا کتنی اچھی بات ہے. ہمیں بھی انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو بھی کوئی نہ کوئی اچھی فیلڈ چوز کرنی ہے, کوئی اچھا انسان بننا ہے اور ایسی فیلڈ میں جانا ہے جس سے آپ اپنی لائف کو تو اچھا کریں, اپنی فیملی کو بھی اور سب دوسروں کے لیے بھی. کتنی پیاری بات کی مطالعہ نے. جی توبہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ مائک آن کر لیں جلدی سے. جی میں جب ہمیں کسی رسول کو دعا دینی ہوتی ہے اذان ہو رہی تو ہمیں رسول اللہ کہنا چاہیے. جی بالکل, پوری اذان دھیان سے سننی چاہیے. آپ تو آپ ترجمہ سیکھ چکے ہیں, سمجھ کے پورے احترام سے. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی شور اس وقت نہیں کرنا چاہیے گھر میں, باقی کام چھوڑ کے اذان سننی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. جی حنین, آپ مائک آن کر لیجیے. میم میں کہہ رہی تھی کہ وہ حرف کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیا کیسے پتا چلتا ہے بیٹے؟ حرف بیٹے ابھی گرامر میں میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتانے والی ہوں حرف کا کیسے پتا چلتا ہے. آپ دھیان سے سنیں. اور اس سے پہلے میں آپ سب سے ایک کوشچن کر لیتی ہوں. چیٹ باکس میں ذرا بتائیں, سورۃ الفلق میں کن 3 چیزوں سے بچنے کا فارمولا پڑھا ہے ہم نے؟ جلدی سے چیٹ باکس میں وہ تینوں چیزیں لکھ دیں, جلدی سے. I'm just waiting for your message in chat box. جی ماشاءاللہ, سارا نے سب سے پہلے کہا ہے اندھیرا, حسد اور جادو. ایمان بتا رہی ہیں آئی فون لکھا ہوا ہے, ابھی تک آپ نے نیم نہیں لکھا اپنا. آپ کی اٹینڈنس کیسے آئے گی؟ ایمان, نجلہ اظہر, آئی فون 14, عرفہ رحمان. اوکے, ماشاءاللہ, یو پیپل آر ویری ایکٹیو. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوں گے کہ دنیا میں لوگ اتنے کاموں میں مصروف ہیں, لیکن یہ سب لوگ اپنے باقی کاموں کو میری محبت میں چھوڑ کر میرا قرآن سیکھ رہے ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے کتنے خوش ہوں گے. اور کنٹینیوسلی اس ٹائم فرشتے جو ہیں وہ آپ کی ریوارڈز نوٹ لکھ رہے ہوں گے, ہے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سب کی ایفرٹس قبول فرمائے. کہا نے بھی ریپلائی کیا, عرفہ نے بھی کیا ہے. چلیں جی, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو ابھی بریک کی ضرورت ہے, یہ گپ شپ میں ہماری بریک ہو گئی. ٹھیک ہے, تو ہم ایک ہی بار گرامر کے بعد بریک کریں گے. 12B کی طرف آتے ہیں ہم. گرامر پورشن ہے فعل مضارع. اٹس اے ڈفرنٹ ورڈ فار یو, نیو ورڈ فار یو. ورڈ تو نیو نہیں ہے لیکن کانسیپٹ نیو ہے, کیونکہ یہ ورڈ میں آپ کو پچھلے چیپٹر میں بتا چکی ہوں کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں فعل کی, فعل ماضی, فعل مضارع, فعل امر. تو فعل ماضی تو ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ رہے تھے, ہے نا. 4 طرح کے ٹیبلز ہم نے سیکھے, 4 ٹائپس کے. اور اب ہم فعل مضارع کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, سو اسمائل کریں اور خوشی خوشی ریڈی ہو جائیں گرامر کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو چیزیں صحیح سے سمجھ میں آئیں, اٹس جسٹ لائک اے گیم, کہ آپ ٹی پی آئی کی گیم کو فالو کریں. اور اس کے لیے آپ کو دھیان سے سننا ہے, دیکھنا ہے, سوچنا ہے, ذہن استعمال کرنا ہے, بولنا بھی ہے زبان سے. آپ جہاں بھی ہیں, مائک آن ہے نہیں ہے, آپ نے بولنا ہے. ٹھیک ہے, اور بتانا ہے. جو اسپیسیفک اشارے آپ کو بتائے جائیں آپ نے وہ ضرور کرنے ہیں, اور آپ نے دل سے اور سب نے مل کر اس کو اسٹڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. جی ابھی ہماری ایک جو ہے فیلو پوچھ رہی تھی کہ حرف کیا ہوتا ہے, تو میں شارٹلی بتا دیتی ہوں. ویسے تو ڈیئر پچھلے اتنے نئے چیپٹرز میں ہر بار یہ والی سلائڈ بتائی جاتی ہے,
हो सकता है आपसे किसी वजह से मिस स्किप हो गई हो, तो मैं फिर बता देती हूँ। हमने ये बताया था कि कुरान के जो अल्फाज हैं सारे के सारे कितने हैं भला, जरा चैट बॉक्स में बताइए। कुरान में कुल कितने अल्फाज हैं? हमने चैप्टर 1 में इसको पढ़ा था। Who will answer my question in chat box? 78,000 है माशाल्लाह। अभी देखते हैं, सबसे पहले हमें बताया अब्दुल मोइज ने, फिर ईमान बता रही है, ताहा बता रहे हैं, सारा, बहुत सारे लोग बता रहे हैं माशाल्लाह। 78,000 तकरीबन अल्फाज हैं कुरान के। अब वो जो लफ्ज है ना, गौर से सुने, वो 3 तरह के हो सकते हैं। कुछ लफ्ज उनमें इस्म है, कुछ फेल है, कुछ हर्फ है, ठीक है। इस्म वो लफ्ज होते हैं जो कोई नाम हो किसी का, या कोई किसी की कोई क्वालिटी, अच्छाई बुराई कुछ हो, सिफ्त हो, ठीक है, एट्रीब्यूट हो, यानी वो अच्छा है, वो बुरा है, वो लफ्ज भी सारे इस्म होते हैं, और किसी का नाम भी इस्म होता है। समझ आ गया आपको? फेल कौन से लफ्ज होते हैं? वो सारे लफ्ज कुरान के या कोई और अरबी के जो भी लफ्ज होते हैं, वो सारे के सारे लफ्ज जिनमें कोई काम पता चले, कोई काम हो रहा है, ठीक है, और टाइम भी पता चले, वो फेल होता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना एक काम है, और पढ़ा रही हूँ से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में हो रहा है काम, इसका मतलब है पढ़ाना फेल होगा। इसमें काम भी पता चल रहा है, टाइम भी पता चल रहा है। कल पढ़ाया था, पिछले हफ्ते किसी ने पढ़ाया था, हमारी इतनी अच्छी मैम थी, मैम नूरीन, उन्होंने पढ़ाया था पिछले हफ्ते, तो वो माजी में पढ़ाया था। तो ये जो बात है, ये वो जो पढ़ाया, ये फेल है, क्योंकि इसमें काम पता चल रहा है। पढ़ाना भी एक काम है, दौड़ना, खाना पीना, पढ़ना सब काम है। हर्फ क्या होता है? एक तो डेफिनेशन इसकी आप ये याद रख लें कि वो सारे लफ्ज कुरान के, आप कह सकते हैं कि जो वो सारे लफ्ज जो इस्म भी ना हो, फेल भी ना हो, आप समझ लें कि वो हर्फ हैं। एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरी ये है कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, जुमला बनाने के लिए, इस्म और फेल को जोड़ने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, उनको हर्फ कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। और जैसे सर अभी कुछ टाइम पहले रिवीजन टाइम में बता रहे थे, बल्कि आई थिंक क्लास टाइम में ही, कि हमने कई, यहाँ पर आई थिंक 9 हर्फ जो है वो हमें मुतारिफ कराए भी गए हैं, वो आपको याद होंगे, और अगर नहीं है तो आप उनको जरूर सर्च करें, ठीक है। अब हमने क्योंकि इसम को भी काफी पढ़ा है, हर्फ को भी, और अब हम आजकल फेल पढ़ रहे हैं। फेल मादी वो होता है ऐसा काम जो कि हो गया हो, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया फेल काम होता है। फेल माजी ऐसा काम जो हो गया। फेल मुदारे जो काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अब अगर कोई काम नहीं हुआ तो उसकी 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वो काम हो रहा है इन प्रेजेंट, हाल में, या वो काम होगा इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में। यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों फेल मुदारे में आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2 टेंसेस हमें अलग अलग नहीं पढ़ने पड़ेंगे। कितना बड़ा फायदा है हमें, कुरान सीखना कितना आसान है। इंग्लिश उर्दू में तो हम अलग पढ़ते हैं, हाल, मुस्तकबिल या प्रेजेंट, फ्यूचर, लेकिन यहाँ एक ही है ना। और फेल अम्र हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद हम बाद में करेंगे। फेल मादी में हमने पढ़ा था जो काम हो गया, अब हम पढ़ रहे हैं फेल मुदारे। ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ज्यादातर जो अफआल है ना, वो 3 हरूफ से बनते हैं, और हमने बेसिकली प्रैक्टिस की है फ़ाअला से। सबसे ज्यादा जो हमारा पैटर्न टेबल है वो फ़ाअला का है, यानी फा आइन लाम, इसी को ज़हन में रखेंगे हम, है ना। फेल मुदारे, इंग्लिश में आप इसको इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाले काम। अब ये जो स्लाइड है इसको गौर से देखें, इसमें जो पहला टेबल आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला टेबल, ये है फेल मादी जो आपने सीखा है। फ़ाअला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हमने किया, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। आज हम सीख रहे हैं नया टेबल, फेल मुदारे। पहले सुन लें, फिर मैं आपको समझाऊंगी ये बना कैसे। इसमें आपने करना क्या है, आपने माजी में इशारा जो किया हुआ होता है ना, पैरेलल टू द ग्राउंड, राइट हैंड राइट साइड, क्योंकि मुज़क्कर की बात होती है। मुदारे में आपका हाथ यहाँ की बजाय इक्वल टू योर आई लेवल हो जाएगा, तकरीबन आपकी आंखों के बराबर, और आप कहेंगे यफ़अलु, वो करता है, क्योंकि ये मुदारे है, वो करता है या वो करेगा, इनमें से कोई एक हम चूज कर लेते हैं। वो करता है आसान है, ठीक है। यफ़अलूना, वो सब करते हैं। तफ़अलु, आप करते हैं। अफ़अलु, मैं करता हूँ। तफ़अलूना, आप सब करते हैं। नफ़अलु, हम करते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, और मुझे यकीन है जो ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स इस वक्त क्लास में हैं, उन्होंने मेरे साथ इशारे कर भी लिए होंगे। बी एक्टिव। अभी जो थोड़ी चंद मिनट्स की बात है, जो एक्टिव नहीं होंगे ना, वो फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे और उनको सारी पॉइंट्स फिर समझ में उस तरह नहीं आते।
फर्स्ट लेसन में ज्यादा डिटेल समझाई जाती है, सो ध्यान से सुने, ठीक है। अच्छा, ये है वो फॉर्मूला फेल मुदारे का, ये आप याद रखें तो आपके लिए टेबल आसान है। यानी जैसे मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था, ये देखें, ये एंड वाला आपको फॉर्मूला बताया था, जबर है, उसके बाद ऊ ता तू तुम ना, तो यहाँ पर क्या है ये देखें, या फिर या के साथ आगे वाव नून है, यानी ऊ ना की आवाज आ जाती है ना। फिर यहाँ पर ता, फॉर्मूला आप याद रखें, आ ता, फिर वाव नून है, और फिर ना। बच्चे आपको अभी लग रहा होगा कि ये क्या है, अभी जब आप टेबल प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर आपको मिनट्स में, सेकंड्स में याद हो जाएगा। ये देखें जरा, ये टेबल है आपका, और इसमें ये फॉर्मूला हमने लगाया शुरू में, या के बाद ऊना, अभी मैं आपको बता रही हूँ, ता के बाद ऊना, फिर ना। एनीवेज, इसकी मेरे साथ प्रैक्टिस करें, अभी मैं आपको मजीद समझाती हूँ इसके बारे में, ठीक है। ये टेबल मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ आप में से ही कोई प्रैक्टिस करेगा, जरा हैंड रेज कीजिए, कौन प्रैक्टिस करना चाह रहा है। मोहम्मद बिन उमर, जल्दी से हैंड रेज करें बेटे, और हाथ का इशारा आंखों के बराबर लाकर मुझे तर्जुमे के साथ टेबल सुनाए। यफालू वो करता है, यफालूना वो सब करते हैं, तफउल आप करते हैं, तफअलु बेटे, तफअलु, तफालू आप करते हैं, अफालू मैं करता हूँ, तफालूना तफालूना आप सब करते हैं, नफालू हम सब करते हैं। माशाल्लाह। देखिए, माजी मुजारे का सबसे पहला टेबल आपने सुनाया है, माशाल्लाह। ईमान यही टेबल सुनाए हमें जल्दी से, और इशारे तो बहुत जरूरी हैं। ओके, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हम एक और मेंबर से सुन लेते हैं, मनिया अदील, आप ये सिर्फ अरबी में सुनाएंगी, इशारे जरूरी हैं, तर्जुमा नहीं सुनाना जी। ओके, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु। नफ़अलु, ठीक है। और ये ज़हन में रखना है कि ये देखिए जमा के लफ्ज ये है ना, वो सब करते हैं, तो यहाँ पर आखिर में वाव नून आ रहा है ना। जैसे हमने मुज़क्कर में वाव नून और या नून से जमा बनाई थी, तो एक हिंट आप याद रख सकते हैं, ये वो वाली नहीं है, आप ये नहीं कहेंगे क्योंकि वो इसम था, हम इसको ज्यादा रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन आपकी पहचान के लिए समझ आ रहा है आपको। इसी तरह आप सब करते हैं, तो यहाँ पर भी वाव नून है, हम सब करते हैं ये भी जमा है, लेकिन इसके आखिर में वाव नून नहीं है, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, आखिर में वाव नून नहीं है, इसके शुरू में नून आ गया तो ये काफी है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो हम आते हैं अरबी बोलचाल की तरफ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है बोलचाल करते हुए। मैं चाहूंगी कि अरफा रहमान अपना माइक ऑन कर लें, और मैं सवाल करती हूँ, आपने इशारों से जवाब देना है। अरफा जल्दी माइक ऑन करेंगी जी, माशाल्लाह। हाथ का इशारा बेटे आई लेवल पर होगा, क्योंकि ये फेल मुदारे है, माजी नहीं है। हल यफ़अलु क्या वो करता है, नाम यफ़अलु हाँ वो करता है, हल यफ़अलूना क्या वो सब करते हैं, नाम यफ़अलूना जी हाँ वो सब करते हैं, हल तफ़अलु क्या आप करते हैं, नाम अफ़अलु जी हाँ मैं करता हूँ, हल तफ़अलूना क्या आप सब करते हैं। नाम नफ़अलु जी हम सब करते हैं। माशाल्लाह, अरफा ने तो इतना अच्छा सुनाया है, जैसे पहले से अरफा की प्रैक्टिस थी। माशाल्लाह अरफा, टू गुड, एवरीवन इज पुटिंग एफर्ट, माशाल्लाह। अच्छा, आपने एक टेबल समझ लिया ना, यानी आपको बेसिक रूल पता चल गया। अब हमने पिछली बार समझा था ना, फेल मादी में 4 सेट समझे थे, ये पहला सेट है, ये देखिए, फ़अला, जअला, फ़तहा, हमने बात की थी तीनों फ्रेंड्स होते हैं। इसी तरह ये तीनों फ्रेंड्स अगर मुदारे में आए तो क्या बन जाते हैं, फ़अला से बन जाते हैं यफ़अलु, जअला से यजअलु, फ़तहा से यफ़तहु, है ना। माजी से मुदारे, यानी उसने किया, उसने बनाया, उसने खोला, और मुदारे में वो करता है, वो बनाता है, वो खोलता है ना। तो ये देखें चेंज हो गया, वो पास्ट मतलब इम्परफेक्ट जो है ना, उसके हिसाब से चेंज हो गया, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। एनीवे, ये जो मैं फॉर्मूला की बात करी थी उसको फिर गौर से देख लें ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। ये देखें, ये जो ब्लैक में आपको नजर आ रही है, ये मैं फॉर्मूला बता रही थी ना कि या आता है, या फिर या प्लस वाव नून, यानी ऊना, ऊना की आवाज, या प्लस ऊना, ता आ,
ता प्लस ऊना ना, ये एक हल्की सी हिंट होती है, टिप होती है कि आप इस तरह आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। तो ये अगर फॉर्मूला आपको याद हो, दरमियान वाला लफ्ज आप कोई भी चेंज करेंगे, आपका टेबल आराम से बन जाएगा। जैसे आपने देखे फॉर्मूला वही है, बीच में आपने जाला का जीम आइन लाम लगाया तो आपका टेबल आराम से बन गया, है ना। यजालू वो बनाता है, यजालूना वो सब बनाते हैं, तजालू आप बनाते हो, अजालू मैं बनाता हूँ, तजालूना आप सब बनाते हैं, और अजालू नजालू हम बनाते हैं। कौन आप में से प्रैक्टिस कर रहा है? इरहा अली माइक ऑन करें जल्दी से। यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, और तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं। माशाल्लाह इरहा, इट्स टू गुड। कितने आराम से इन्होंने प्रैक्टिस किया, देखिए सबको प्रैक्टिस करवा दिया। ताहा अजीज यही टेबल सुना रहे हैं, यही यजलू वो बनाता है, यजलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं। माशाल्लाह। तो टेबल हो गया, यजअलू यजअलूना, तजअलू अजअलू, तजअलूना नजअलू। ये बिल्कुल यफअलू वाले टेबल जैसा है ना। फॉर्मूला तो वही अप्लाई हो रहा है सब पर, इट्स वेरी इजी। मोहम्मद मिज़ियाल को मैं कहूंगी कि वो अपना माइक ऑन करें और मेरे साथ अदबी बोलचाल की प्रैक्टिस करें। यजअलू के टेबल से मोहम्मद मिज़ियाल, अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आपने नहीं में जवाब देना है, ला में। यस मैम। ठीक है। अगर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ हल यजअलू ओके क्या मैम। वो बनाता है, मिज़ियाल रिप्लाई करें, हल यजअलू, यजअलू ला यजअलू, तर्जमा कीजिए, नहीं वो नहीं बनाता है। रिपीट करें, नहीं वो नहीं बनाता है, नहीं वो हल नहीं बनाता है। यजअलूना क्या वो सब बनाते हैं, ला यजअलूना नहीं वो सब नहीं बनाते, हल तजअलू क्या आप बनाते हो, ला अजअलू नहीं मैं नहीं बनाता, हल तजअलूना क्या आप सब बनाते हो। ला नजअलू नहीं हम सब नहीं बनाते। वेरी नाइस। देखें आपकी थोड़ी सी एफर्ट से, अब देखिए जब से कोर्स शुरू नहीं हुआ था, क्या आपकी इस तरह की कोई प्रैक्टिस थी? थोड़े से दिनों में एक एक घंटा आप अगर पढ़ रहे होते हैं वीक में सिर्फ 3 आवर्स, लेकिन आप इतने अच्छे हो गए हैं अरबी में, इतने एक्सपर्ट हो गए हैं माशाल्लाह। अच्छा, इसी सेट का पहला सेट पढ़ रहे हैं ना, उसका तीसरा और आखिरी फ्रेंड हमारे सामने है। हमने पढ़ा था ना, फतह उसने खोला, तो यह यफ्तहू वो खोलता है। प्रैक्टिस कर रहा है कौन? मैं नहीं कर रही, आप तो बहुत ही एक्सपर्ट हैं, आप खुद कर सकते हैं। शाजिया तारिक माइक ऑन करें माशाल्लाह। और शाजिया तारिक को जी बहुत सारे लोगों जी ने हैंड रेज किया हुआ है जी। जी। आप शुरू करें, यफ्तहू सारे जरूरी जी, हैं। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं। लगता हूँ हम सब खोलते हाँ। हैं, टू गुड माशाल्लाह। तो अभी हम ईमान से सुन लेते हैं। ईमान यही टेबल सुनाइए जल्दी से। तो होस्ट, यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। माशाल्लाह, यही टेबल हम सुनते हैं अभी एक और स्टूडेंट से, महविश सलाहुद्दीन। प्लीज माइक ऑन करें अपना और सिर्फ अरबी में सुनाइए, सिर्फ अरबी में। वालेकुम अस्सलाम। यफ्तहु, यफ्तहूना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहूना, नफ्तहु। माशाल्लाह, हमारे पास एक और स्टूडेंट से हम अरबी में सुनेंगे। किसने नहीं सुनाया है यहाँ पर? मिसबा असलम माइक ऑन कर लें जल्दी से। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। माशाल्लाह। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि मुदारे का फर्स्ट डे
बहुत सिंपल स्लाइड्स के साथ आपको जल्दी से समझ आ जाए और मैं बहुत ही सिंपल टाइम में, शॉर्ट टाइम में सिंपल तरीके से आपको बता दूं। और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन प्रैक्टिस शर्त है। अगर आप चाहते हैं आपको आज ही सब चीजें क्लियर हो जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको मुकम्मल कर चुके हैं। और आज का नुक्ता तालीम मैं आपको उस तरह से नहीं बता रही हूँ, बट मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि जो मिड क्विज के हवाले से बात करूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने बहुत ही जेन्युइन रीजंस बताई थी कि ये वजह है और हम इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वो मुझसे दोबारा राब्ता करें, मैं उनको दोबारा मौका दूंगी। हो सकता है मैं क्विज कोई और सेंड कर दूं, लेकिन उनको क्विज का टाइम दोबारा दिया जा सकता है, लेकिन जरूरी है कि अगले 2 दिनों में वो मुझसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। और इंशाल्लाह वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज 12 चैप्टर्स के एंड तक टोटल 144 वर्ड सीख लिए हैं। अपने आप को शाबाश कहें, है ना, एक्सीलेंट कहें, अल्लाह ताला का शुक्र करें। कुरान के 31,000 से ज्यादा लफ्ज सीख लिए हैं। 1000 ही कितना ज्यादा होता है, हमने कभी सोचा ही नहीं था हमें 1000 अरबी के लफ्ज समझ आएंगे, और ये 31,000 से ज्यादा हो गए, क्योंकि ये लफ्ज रिपीट इतनी दफा हुए हैं ना, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द हम पूरा कुरान समझ जाएंगे। अभी हम दुआ करते हैं क्लास के एंड में कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने और अच्छे अच्छे तरीके से समझने, जैसे हम समझ रहे हैं, इस पे गौर करने, इसको याद करने और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसे दूसरों तक फैलाने की। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आखिरी दुआ आप सब ऊंची आवाज में पढ़ लीजिए जहां भी हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अपना बहुत ख्याल रखें और नमाज बाकायदगी से अदा करनी है, जरूरी। अब तो आपको पूरी नमाज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना शुरू के चैप्टर्स में, तो पूरी नमाज को समझ कर पढ़ें और रोज कम से कम 5 मिनट रेसिटेशन हर हाल में होनी चाहिए। खाना खाना हम किसी दिन नहीं छोड़ते ना, आदत बनाएं। जैसे नमाज की पाबंदी जरूरी है, कुरान की तिलावत समझ कर करें, चाहे सिर्फ 5 मिनट, लेकिन रोज, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। Excuse me. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Excuse me.